Hi guys, good morning. It's 12th February and I am going to start a workout challenge. I've decided which workout challenge I want to start. One of you has actually suggested that to me, and it's Hannah Millie's Valentine 1 week workout challenge, right? So we'll do that. I have been trying to do workout since 8:30, I guess. Yeah. I woke up at 8. I slept at around 2:30 something. I know, pretty. Okay, so there's just one video per day. So if you go to Hannah Millie's channel and then you click videos, the first few videos you'll see are the Valentine Day's workout. So I'll start with day 1, then we have day 2, 3, 4, 5, 6 and 7 will be uploaded later. So let's start with this workout. It's 19 minutes of video. Okay, I hope it's not very tough. I've not seen the workout, but let's go and do it. Hold on, I almost forgot to take measurements. Measure yourself, okay? Okay, I don't have the time to change my clothes and wear something summer appropriate, so I'm just going to measure myself in this. Okay, let's start with my belly, but I have some hair on my sweater, so anyway. So on the navel area, it's 39. It is also 39.5, just 39.5. It's 38 point something, like 38 and a little more, not 0.5, 38.25, I don't know, 43.25 again. It's 27 inches. Yeah, 13.25 inches. Okay, done with the measurements. Now we'll move on to the actual workout. Day 1, yeah! Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. That was about the workout. It was a great workout, but I was very glad that I was done with it. Uske baad I started with the daily, not the daily, but the pending tasks, जैसे कि गेट में ऑयलिंग करवाना भाई से of course. Then कपड़े वगैरह सुखाए ही बिकॉज मम्मी ने मशीन लगाई हुई थी एंड देयर वर अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, सो आई डिड दैट. एंड ऑल्सो ये सामने सामने मेरे भाई के कार के कपड़े धुल के और सूखे हैं. सो इसका एक अलग ही वो चलता है, गाड़ी के लिए अपना प्यार ये अपना अलग से ही लगा रहता है. एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड इन द मॉर्निंग एक्चुअली. उसके बाद मैंने वो पिजन्स वाला भी वो भर दिया था बट दिखाया नहीं. एंड ऑल्सो कैन यू सी हमारी छत कितनी कलरफुल एंड क्यूट लग रही है, लाइक डन विद ऑल द सफाई एंड एवरीथिंग. और मैं नहा ली, आई टुक अ बाथ. उसके बाद आई वॉज वेरी वेरी हंग्री.
फिर मैंने खाना खाया, थोड़ा सा ही खा पाई मैं, एंड दैट्स बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, रायता गिलास भर के, सैलड, तो ऐसी चीज़ें हो गई कि मेरा पेट ऑलरेडी भर गया, रोटी नहीं खाने का मन किया उतना। ओके, सो आई एम डन विद लंच, एवरीथिंग इज़ डन, साफ़ सफाई हो गई, मैं नहा चुकी, सब हो गया राइट। अभी सबसे पहला काम करते हैं, अब जाके अभी 3 बज चुके हैं दोपहर के, सैटरडे के, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई first DIY, which is to cover the safe that I have. I'll show you with the wallpaper I ordered, right? So I'll show you how the safe looks like right now and if the wallpaper is worth buying or not. Okay, so this is what the safe looks like. मैं पास से दिखाती हूँ। ये हालत हो चुकी है, बहुत पुरानी सेफ है यार, प्लस इस पर हमारी थोड़ी कलाकृतियाँ भी हैं, वो कहाँ हैं, ये रहे। सी, ये ना बचपन में वो स्टिकर्स आते थे, सो ये वो चिपका रखे हैं। ये एजेस का हाल है बिकॉज हमने काफ़ी बार मूविंग एंड शिफ्टिंग की है, सो इसलिए थोड़ा सा घिसा हुआ है काफ़ी जगह से। एंड साइड से अगर देखें तो ये थोड़ा ना टेक्सचर्ड है, इफ़ यू कैन सी। सो लेट्स सी इस पर वॉलपेपर चिपकता है या नहीं। तो आई स्टार्टेड यूजिंग द वॉलपेपर राइट, सो दिखने में काफ़ी अच्छा था ये वॉलपेपर, आई वुड से, ऑल्दो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर वर्किंग विद द वॉलपेपर। ओके, सो मेरा रिव्यू उसी हिसाब से होगा। तो मैंने थोड़ा बहुत भाई से कंसल्ट किया, थोड़ी सेफ इधर को सरकवा दी क्योंकि अकेले से मेरे से नहीं हो रहा था ऑनेस्टली। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यार हैंडल हटाना पड़ेगा, एक ये लोगो सा लगा हुआ था वो हटाना पड़ेगा। उसके बाद भाई तो मेरा चला गया। तुम लोग कहते हो ना कितना अच्छा है कितना प्यारा है, इस दिन देखो नहीं इसने ज़्यादा हेल्प की मेरी, सब कुछ लाइक मुझे खुद ही करना पड़ा। ऑल्दो इसने ये मेजर करवा दिया था, सो वी मेजर्ड और हमने सोचा एक ही पीस में एक साइड का कर देंगे राइट। उसके बाद आई यूज्ड अ स्क्रू ड्राइवर एंड आई अनस्क्रूड द साइन जो लग रहा था उस पर, कुछ गाज़ियाबाद का कुछ तो था, और फिर मैंने ये वॉलपेपर लगाना स्टार्ट किया। इस टाइम पर इफ़ यू हैव समवन प्लीज़ यूज़ देयर हेल्प। ओके, 2 लोग बहुत आसानी से कर देंगे, बट व्हाट आई डिड वाज मैंने एक कॉर्नर उतारा थोड़ा सा एंड देन मैंने उसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने उसी की सिधाई में लाइक उसी की सीध में पूरी लाइन चिपका दी राइट। तो ऊपर ऊपर से उतर गया और वो चिपक गया। उसके बाद मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा, ट्रस्ट मी डोंट मेक अ हेस्ट, जितना जल्दी करोगे बर्बाद हो सकता है भाई, मैं तो यही कहूँगी। तो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा उतारो, थोड़ा थोड़ा उसे पेस्ट करो। ऑल्सो ये जो टूल मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरा नहीं है एक्चुअली, पुरू का ही है, आई मीन मेरे छोटे भाई का। सो ये ना कार पर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करता रहता है, तो उसके चैनल पर ही यूजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसी में से ही मैंने देखा था एक्चुअली चैनल पे ही उसके कि ये कुछ तो ऐसे स्क्वीज़ी कहते हैं इसे शायद, तो ये अपने विनाइल वगैरह रैप कर रहा था गाड़ी पे। तो तब आई डोंट नो व्हाट ही डिड, बट उसने ये मंगाया था एंड इट वर्कड ग्रेट फॉर मी। सो इसकी मदद से लाइक वॉलपेपर एकदम बढ़िया चिपक रहा था। ऑल्सो इफ़ यू डू एनी मिस्टेक ना उसी के उसी टाइम उसे हटाओ वॉलपेपर को थोड़ा सा एंड देन रीडू इट। लाइक मिस्टेक से मेरा मतलब है बबल्स मत छोड़ो भाई, जितना हो सके ना एकदम मतलब मस्त लगाओ चिपका चिपका के, एंड हो सके तो गेट दिस टूल। ओके ठीक है, तो मैंने पूरा वो कर लिया था एक साइड का फ्लैप कवर सेफ का, बट नीचे आके मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया मेरे को उतने पे ही रोक देना चाहिए एग्जैक्टली या थोड़ा एक्स्ट्रा कट करके नीचे फोल्ड करना चाहिए, बट मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटा और उसे नीचे की तरफ फोल्ड करने का ही सोचा, बिकॉज मुझे लगा कि यू नो अगर वहीं के वहीं छोड़ूंगी तो वॉलपेपर वहीं से उखड़ ना जाए, इसलिए। सो दैट्स व्हाट आई डिड। आई रियली डोंट नो ये सही है या नहीं, वो तो मैं थोड़ा यूज़ करने के बाद ही कुछ रिव्यू दे पाऊँगी। उसके बाद मैंने हैंडल निकाला और ये जो की होल होता है वो वाली चीज़ निकाली। हैंडल में तो काफ़ी टाइम लगा था भाई, काफ़ी पीछे से तामझाम खोलना पड़ा था, बहुत कुछ याद रखना पड़ा था कि ये वाला स्क्रू यहाँ का है, ये वाला वहाँ का है, तो वो सब कुछ मैंने किया। एंड देन उसके बाद लाइक आई मेजर्ड द वॉलपेपर जो बचा हुआ था, बट गेस व्हाट, वो ऑलमोस्ट 3/4 ही कवर कर पाएगा इस डोर को राइट, इस सेफ के इस राइट डोर को। सो उसके बाद मैंने पुरू से भी पूछा एंड हम लोगों ने फिर ये सोचा कि यार दूसरा ऑर्डर कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें तो हो नहीं रहा राइट।
तो दूसरा वॉलपेपर ऑर्डर किया। इनफैक्ट अब मैंने 2 और ऑर्डर कर दिए हैं एंड अब जब वो आएंगे तभी आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस सेफ, क्योंकि ये बीच में ऐसे 2 पीस मेरे लगाने का मन नहीं था फ्रंट में एटलीस्ट। तो दिस इज़ वॉट द कंडीशन ऑफ द सेफ इज़ अभी। आधा ऐसा हो रहा है और आधा वैसा। एनीवेज दैट इज़ डन। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे एक काम दे दिया एक्चुअली, उसको कार में रखने के लिए, बूट में रखने के लिए एक बॉक्स चाहिए, ऑर्गेनाइज़र टाइप। सो ही वांटेड मी टू लाइक मेक एन ऑर्गेनाइज़र, प्लस आई हैड टू कंप्लीट दिस क्लिप रखने वाला बॉक्स। ये ना बिल्कुल सूख गया था, वो कागज़ और फेविकॉल से मैंने किया था ना, बिल्कुल सूख के एकदम कड़क हो गया था। सो ये मेरे काम थे। उसके बाद मैं इन कामों में लग गई। तो इफ़ यू आर अ रेगुलर वॉचर तो यू वुड नो कि मैंने चाय पत्ती जब मंगाई थी तो उसका एक बड़ा सा डब्बा आया था। सो दैट इज़ व्हाट आई एम यूजिंग टू मेक दिस ऑर्गेनाइज़र फॉर हिम। तो कुछ नहीं किया, बस ये जो फ्लैप्स होते हैं ना उनको अंदर की तरफ ही फोल्ड कर दिया, प्लस कपड़ा थोड़ा एकदम आइडिया ले रही थी मैं कि कैसे कवर करूँगी। अंदर से आई विल यूज़ दिस क्लॉथ, बाहर से मैं कुछ और यूज़ करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा फेविकॉल को डाइल्यूट किया, लाइक पानी, हल्का सा ब्रश पे पानी लगाया और फेविकॉल लगाई, उस फ्लैप को अंदर ही चिपका दिया। इससे ना थोड़ी सी मजबूती आ जाती है कार्डबोर्ड में, लाइक डबल लेयर हो जाती है। ठीक है, तो साइड के चारों चीज़ें एक एक फ्लैप से कवर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। नीचे के लिए मैंने एक और गत्ता लिया, किसी के तो शादी के कार्ड का पड़ा था तो लाइक शादी के मिठाई के डब्बे का जो पीस था, दैट आई यूज्ड एज द बेस। ठीक है, तो ये सब कुछ टाइट हो गया, लाइक एकदम सील हो गया। इसको मैंने सूखने छोड़ दिया। उसके बाद ये जो मैं काफ़ी दिनों से नॉट एन ऑर्गेनाइज़र, एक प्लांट होल्डर काइंड ऑफ चीज़ बना रही हूँ, ऐसे डेकोर एस्थेटिक चीज़। तो ये पूरी नहीं होके दे रही यार, हर रोज़ कुछ ना कुछ टूट ही जाता है इसमें। मैं या तो झटक पटक कर देती हूँ या कुछ तो ऐसा कर देती हूँ कि कुछ ख़राब हो जाता है। सो इसको मैंने फाइनल एक बार और चिपकाया एंड देन आई कलेक्टेड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टू पेंट। सो या पेंट करने के लिए काफ़ी कुछ रहता है, काफ़ी दिनों से भी रखे हुए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ एकदम नए हैं। सो आई जस्ट स्टार्टेड विद पेंटिंग, ऑल्दो सब कुछ नहीं हो पाया सैटरडे को ही। सो जो भी हुआ उतना ही ठीक है, आई एम हैप्पी विद। हेलो, आई वॉन्ट टू एड्रेस वन थिंग। अभी राइट नाउ व्हेन आई एम फिल्मिंग दिस, इट्स संडे, रात के 10 बज चुके हैं। ओके, थोड़ा सा प्लान में कुछ चेंज है। आई वॉज गोइंग टू मर्ज कल का व्लॉग एंड आज का व्लॉग, सैटरडे एंड संडे का बोथ, बट आई फील लाइक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। प्लस एक और बात है जो कि मुझे खाई जा रही है बहुत ज़्यादा दिनों से, और वो ये है कि सैटरडेज़ को आई यूजुअली डोंट हैव द फ़ोन फ्रॉम विच आई शूट। ठीक है, यूजुअली लाइक 95% of the times I don't have a phone on Saturday to film with. तो what I'm thinking is, आज मैंने सैटरडे का व्लॉग डाला, आज वट एवर यू सॉ वॉज डन ऑन सैटरडे, राइट। तो अब मेरा प्लान ये है, प्लीज़ एक बार सुन लेना, प्लीज़ कंसीडर कर लेना, बिकॉज आई हैव आस्क्ड यू कि क्या मैं एक दिन मिस कर सकती हूँ व्लॉगिंग, बट यू गाइज आर सो लविंग, यू ऑलवेज से कि नहीं वील मिस यू, इवन आई मिस यू, बट कभी कभी ना फ़ोन ही नहीं होता। सो उसका दोनों की तरफ से एक सोल्यूशन निकला है, और वो ये है कि अब जैसे मैंने संडे का, आज का भी सब कुछ फिल्म किया है, सो मैं वो मंडे को डाल दूँगी। एंड आई गॉट टू नो दिस कि मोस्टली व्लॉगर्स यही काम करते हैं कि वो आज का व्लॉग अगले दिन डाल, समझ गए ना तुम, मैं उतना ही समझा सकती हूँ। आज का व्लॉग कल डालेंगे, हाँ करेक्ट, आज का व्लॉग कल डालेंगे, आने वाले कल। तो लाइक दे आर 1 day अहेड फिल्मिंग के हिसाब से और एडिटिंग के हिसाब से। सो उसमें लाइक आई कैन गेट इनफ टाइम फॉर एडिटिंग, में और अच्छे से एडिटिंग कर सकती हूँ एंड थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम होगा, प्लस मुझे मज़ा भी ज़्यादा आएगा एक्चुअली। या सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो कल से यू आर गोइंग टू सी एक दिन पुराना व्लॉग, बट
लाइक हाउ डू आई से, आई थिंक इट विल बी ग्रेट आइडिया बिकॉज मैं अच्छे से एडिट कर पाऊँगी. अभी पता है मैं क्या करती हूँ, इतने सारे काम करती हूँ बट ओनली इतना सा शो करती हूँ बिकॉज मैं लास्ट मोमेंट पे एडिट करना स्टार्ट करती हूँ एंड देन आई एम लाइक इतना सारा इतना लंबा वीडियो बनेगा तो एक्सपोर्ट में टाइम लगेगा, फिर अपलोड में टाइम लगेगा, तो मैं आधी चीज़ें नहीं दिखाती, यू नो दैट. तो या दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई वॉन्टेड टू से. अब भी मैं बोल बोल के बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ा रही हूँ, पता नहीं मैं इतना बोलती क्यों, फालतू का कुछ, जो चीज़ समझानी है वो समझा लेना, ठीक है. दिस इज़ वट आई एम गोइंग टू डू. जो भी थॉट्स है तुम्हारे बता देना मेरे को. आई थिंक ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा बिकॉज मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाऊँगी उस तरीके से. Plus, I will be able to edit a lot better. I will be able to get a lot more time for editing, and I'll be able to express myself better. That's what I feel like. So please share your thoughts as well. देखेंगे अपन, decide कर लेंगे मिलके. And yeah, we'll meet tomorrow. तो कल मोस्टली संडे का व्लॉग देखोगे तुम लोग. So yeah. I hope I made some sense. I'll see you tomorrow. Bye bye. Good night. Take care. I love you.